This is 24th December session of the Hindu newspaper analysis in which we will discuss many four issues. The first issue is India's finalizing first anti-terror policy. Second issue is critical measures important for national security and technological sovereignty. Third issue is related to state of the Rhino 2025. Fourth issue is related to child trafficking. So let's discuss all the issues in detail. In this session, we will discuss India's first anti-terror policy. We will also discuss terror-related laws in India such as TADA, POTA, UAPA. Why in use? The Union government is finalizing India's first anti-terror policy to provide a template for all states to combat and respond to terror attacks and related incidents. Recently, Union government ने India's first anti-terror policy launch की है, so that टेरर अटैक से कॉम्बैट करने के लिए ऑल स्टेट को टेम्पलेट प्रोवाइड कराया जा सके. पॉलिसी विल इंक्लूड द इशूज डिजिटल रेडिकलाइजेशन, मिसयूज और ओपन बॉर्डर एंड कन्वर्जन नेटवर्क फंडेड बाय फॉरेन प्लेयर्स. इस पॉलिसी के अंडर डिजिटल रेडिकलाइजेशन, मिसयूज ऑफ ओपन बॉर्डर एंड कन्वर्जन नेटवर्क फंडेड बाय फॉरेन प्लेयर्स से रिलेटेड इशूज को डील किया जाएगा. व्हाट इज टेररिज्म? Terrorism is the deliberate and unlawful use of violence and intimidation, especially against civilians, to instill fear and achieve political, religious or ideological goal. Terrorism सिविलियन के अंडर फियर इंस्टिल करने के लिए, पॉलिटिकल, रिलीजियस और आइडियोलॉजिकल गोल को अचीव करने के लिए डेलिबरेटली एंड अनलॉफुल तरीके से यूज किए गए वायलेंस है. इट सीक्स टू इन्फ्लुएंस सोसाइटीज और गवर्नमेंट बाय क्रिएटिंग अ क्लाइमेट ऑफ फियर, डिसरप्शन एंड अनसर्टेनिटी. इंडिया मेंटेन अ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट टेररिज्म. इंडिया ने टेररिज्म के अगेंस्ट ऑलवेज जीरो टॉलरेंस पॉलिसी मेंटेन किया है. There are two universally accepted definitions of terrorism, making it difficult to classify specific activity as terrorist act. This unclarity gives a terrorist an advantage and enables some countries to remain silent and veto actions in global institutions. यहाँ पर ये जो ऊपर लाइन लिखा हुआ है, देयर आर नो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशंस. टेररिज्म का कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन प्रेजेंट में नहीं है. यही वजह है कि टेररिज्म के अंडर आने वाले वेरियस एक्ट को प्रॉपर तरीके से यहाँ पर डिफाइन नहीं किया गया है. मेजर एंटी टेरर एक्ट इन इंडिया. इंडिया में एंटी टेरर एक्ट क्या रहे हैं? Number one, Unlawful Activity Prevention Act 1967 UAPA. Original purpose: the UAPA was originally enacted to deal with unlawful activities and secessionist movement that threaten India's integrity and sovereignty. Unlawful Activities Prevention Act UAPA 1967 में इंडिया में लॉन्च किया गया था, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव अनलॉफुल एक्टिविटीज एंड सेशनिस्ट मूवमेंट को डील करना था. बिकॉज इस तरह की जो एक्टिविटीज होती हैं वो इंडिया के इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी के लिए थ्रेट होती हैं. एक्सपेंशन. इट हैज बीन अमेंडेड मल्टीपल टाइम्स टू इंस्टीट्यूट मेजर्स अगेंस्ट टेररिज्म, मेकिंग इट इंडियाज प्रिंसिपल एंटी टेरर लॉ. मल्टीपल टाइम यूएपीए के अंडर अमेंडमेंट किए गए एंड टेररिज्म के अगेंस्ट इसके अंडर कुछ प्रोविजन किए गए. ये इंडिया का प्रिंसिपल एंटी टेरर लॉ है. की प्रोविजंस: designating terrorist. The 2019 amendment in UAPA allow the government to designate individual as terrorist in addition to organizations. 2019 में UAPA के अंडर कुछ अमेंडमेंट किए गए. इन अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट डिक्लेयर किया जा सकता है. ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट. टेररिस्ट एक्ट का यहाँ पर डेफिनेशन प्रपोज किया गया. UAPA एक्ट हैज अ वाइड रेंजिंग डेफिनेशन ऑफ अ टेररिस्ट एक्ट which include causing death, damage or disruption and has been criticized for being potentially vague. Increased powers. It grants extensive power to the law enforcement agencies for investigation and prosecution. Bail restrictions. This act makes bail difficult for the accused with a reversal of the burden of proof in certain cases. Number 2. Terrorist and Disruptive Activities Prevention Act 1987 (TADA). Reason for enactment.
Tada was introduced to deal specifically with disruptive and terrorist activities, particularly in regions like Punjab. पंजाब जैसे रीजन में डिसरप्टिव एंड टेररिस्ट एक्टिविटीज को प्रिवेंट करने के लिए टाडा जैसा एक्ट इंडिया में 1987 में लॉन्च किया गया। कंट्रोवर्शियल प्रोविजंस टाडा एक्ट was highly contentious due to its broad power, including the admissibility of the confessions made to a police officer. Lapse Tada was lapsed in 1995 due to widespread accusations of human rights violation and misuse. Number 3. Prevention of Terrorism Act 2002 (POTA). Reason for enactment. POTA Act was enacted after the 2001 attack on the Indian Parliament to replace the lapsed TADA with a new stringent anti-terror law. 2002 में पोटा एक्ट प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट इनेक्ट किया गया और टाडा को यहाँ पर इसके लिए रिप्लेस किया गया बिकॉज 2001 में इंडियन पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था। कंट्रोवर्शियल फीचर्स इट वॉज कंट्रोवर्शियल बिकॉज लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ग्रांटेड एक्सपेंडेड पावर एंड अलाउिंग फॉर डिटेंशन अप टू 180 days. Repeal POTA was repealed in 2004 due to concern about its potential for misuse and violation of human rights. Number 1. National Investigation Agency Act 2008 NIA Formation established in the response to the 2008 मुंबई टेरर अटैक। 2008 में मुंबई टेरर अटैक होता है, इसके रिस्पॉन्स में इंडिया में 2008 में NIA इस्टेब्लिश किया जाता है। NIA एक्ट एज अ सेंट्रल एजेंसी टू इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूट टेरर रिलेटेड ऑफेंसेस अक्रॉस द कंट्री। कंट्री में टेरर रिलेटेड ऑफेंस को प्रोसिक्यूट करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक सेंट्रल एजेंसी है। जुरिसडिक्शन NIA has the authority to investigate terrorism cases without requiring permission from state government. Amendment in 2019 expanded the NIA scope to include cases related to counterfeit currency, cyber terrorism, and human trafficking. What are the major terrorism related challenges that India face? टैरिफ से रिलेटेड इंडिया कौन कौन से चैलेंजेस फेस कर रहा है? नंबर 1. क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म. India has been grappling with cross-border terrorism backing from neighboring countries, particularly Pakistan. Recent examples include the 2019 Pulwama attack, Pahalgam attack in 2025. Number 2. Left-wing extremism. The left-wing extremist movement, also known as the Naxalite insurgency, has been a persistent challenge for India. Maoist rebel group have been active in several states like Jharkhand and Chhattisgarh, engaging in violence, extortion, and disrupting development projects. The number of LDO-related violence incidents have come down by 76% in 2022 in comparison to 2010. Number 3. Separatist movement and militancy. India has faced separatist movement and militancy in various regions such as Punjab and Northeast. The issue of militancy in Jammu and Kashmir has been particularly complex, with Pakistan-based terrorist groups like Lashkar-e-Taiba and Jaish-e-Mohammed fueling the insurgency. Number 4. Radicalization and online propaganda. The rise of radicalization, particularly among the youth, and the spread of extremist ideologies through online platforms and social media pose a significant threat. India has witnessed instances of youth being radicalized through methods like honey trapping and recruited by terrorist organizations, both domestically and internationally. Number 5. Cyber terrorism. The increasing reliance on digital infrastructure and potential for cyber attack by terrorist group or state-sponsored actors is a big emerging concern for India. Cyber terrorism could target financial systems, sensitive data, and critical infrastructure, causing significant disruptions and economic damage. Number 6. Pakistan existing FATF grey list. Pakistan became out of grey list. India's claim about Pakistan's lack of action against terror group might hold less weight internationally. The Financial Action Task Force listing served as a form of validation of India's concern. In this session, we will discuss why and how critical minerals crucial for India. Why in use? Critical minerals are crucial for national security, defense capability development, and technological sovereignty. क्रिटिकल मिनरल्स इंडिया की सिक्योरिटी के लिए, डिफेंस कैपेबिलिटी डेवलपमेंट के लिए एंड टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। चाइनाज एक्सपोर्ट कंट्रोल ऑन रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर स्क्वीजिंग ग्लोबल सप्लाई चेन।
What are rare earth elements? Rare earth elements, a group of 17 minerals, are crucial for their high density, melting point and conductivity. रेयर अर्थ एलिमेंट 17 मिनरल्स का एक ग्रुप है जो कि हाई डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड कंडक्टिविटी के लिए जाने जाते हैं. दे आर मॉडरेटली अबंडेंट बट हार्ड टू एक्सट्रैक्ट इकोनॉमिकली एंड सस्टेनेबली. अर्थ के अंदर ये मॉडरेटली अबंडेंट है बट इनका एक्सट्रैक्शन इकोनॉमिकली एंड सस्टेनेबली हार्ड है. चाइना डोमिनेंस ऑन रेयर अर्थ एलिमेंट्स. China holding about 30% of global rare earth elements reserve, but controlling 90% of global rare earth element processing and 70% of production. ग्लोबल रेयर अर्थ रिजर्व का 30% चाइना के पास है, जबकि इनका प्रोसेसिंग 90% चाइना के अंडर है एंड प्रोडक्शन 70% चाइना के अंडर है. इन अप्रैल, चाइना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस 7 rare earth element and finished magnet in a bid to counter the trade war. इस ईयर के अप्रैल मंथ में चाइना ने 7 रेयर अर्थ एलिमेंट के इंपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट किया था. स्पेशली मैग्नेट भी इसके अंडर था जिसके एक्सपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट किया गया था और ये यूएसए के ट्रेड वॉर को काउंटर करने के लिए था. China realized that this is something which can play in order to achieve its geopolitical, geostrategic and geo-economic objectives. Why is India focusing on rare earth elements? इंडिया रेयर अर्थ एलिमेंट पर अपने फोकस को क्यों इंक्रीज कर रहा है? नंबर वन, इंडियाज फोकस ऑन रेयर अर्थ एलिमेंट इज ड्राइवन बाय इट्स एम्बिशंस इन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग एंड डिफेंस. These industries depend heavily on rare earth magnets and components. Number two, high import. India imported over 53,000 metric ton of rare earth element magnets in financial year 2024-25. फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में इंडिया ने 53,000 मैट्रिक टन ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट मैग्नेट इंपोर्ट किया था. नंबर थ्री, लेज रिजर्व. इंडिया हैव ओनली 8% ऑफ द वर्ल्ड्स रेयर अर्थ रिजर्व, mainly मोनाजाइट सैंड अक्रॉस आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु एंड केरला. वर्ल्ड के रेयर अर्थ रिजर्व का ओनली 8% इंडिया के पास है, स्पेशली मोनजाइट सैंड आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु एंड केरला के अंदर है. नंबर फोर, लो प्रोडक्शन. इंडिया प्रोड्यूस लेस देन 1% ऑफ ग्लोबल आउटपुट. रेयर अर्थ एलिमेंट का ग्लोबली जितना प्रोडक्शन किया जाता है उसका ओनली 1% इंडिया प्रोड्यूस करता है. गवर्नमेंट इनिशिएटिव रिलेटेड टू रेयर अर्थ एलिमेंट. रेयर अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव्स रहे हैं? नंबर वन, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन. गवर्नमेंट लॉन्च द ₹16,300 crore national critical mineral mission in January with a total outlay of ₹34,300 crore spread over 7 years to achieve self-reliance. सेल्फ रिलायंस को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन इस ईयर जनवरी में लॉन्च किया था. इसके लिए 16,300 रुपीज का बजट यहाँ पर सेट किया गया था. एम, फोकस ऑन एक्सप्लोरेशन, प्रोसेसिंग एंड रिसाइकलिंग मिनरल्स लाइक लिथियम, कोबाल्ट एंड रेयर अर्थ. गवर्नमेंट ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जो लॉन्च किया है इसका मेन फोकस क्रिटिकल मिनरल का एक्सप्लोरेशन, प्रोसेसिंग एंड रिसाइकलिंग इसका मेन ऑब्जेक्टिव था. स्पेशली लिथियम, कोबाल्ट एंड रेयर अर्थ से रिलेटेड यहाँ पर फोकस किया गया. नंबर टू, टू बूस्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, द गवर्नमेंट हैज ऑक्शन्ड न्यू माइनिंग ब्लॉक्स. नंबर थ्री, इनवाइटिंग प्राइवेट कंपनीज टू पार्टिसिपेट इन द एक्सप्लोरेशन एंड प्रोसेसिंग. What is the status of rhinos in 2025? Why in news? According to a study in South Africa, rhino de-orning eliminated poaching to 75% in African reserve. साउथ अफ्रीका के एक स्टडी के अकॉर्डिंग साउथ अफ्रीका के रिजर्व में राइनो डी ऑर्निंग ने राइनो पोचिंग को 75% तक एलिमिनेट किया है.
Once upon a time, the thunder of the hooves of lakh of mighty rhinos echoes across the savanna, grassland, and tropical forest of Africa and Asia. Uh, एक टाइम था जब एशिया एंड अफ्रीका के सवाना, ग्रासलैंड एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा राइनोज हुआ करते थे. बट एज ऑफ 2024, fewer than 28,000 rhinos remain on the planet, all five species combined. 2024 में पूरा अर्थ प्लेनेट पर अबाउट 28,000 राइनोज हैं. राइनोज की पूरे अर्थ पर अबाउट 5 स्पीसीज हैं. टोटल नंबर ऑफ राइनोज इन वर्ल्ड एंड इन इंडिया. इंडिया और वर्ल्ड में टोटल नंबर ऑफ राइनोज कितना है? ग्लोबल राइनो पॉपुलेशन टोटल ओवर 28,000 राइनोज अक्रॉस 5 स्पीसीज. ग्लोबली अगर देखा जाए तो टोटल 28,000 राइनोज हैं. 5 स्पीसीज इसकी हैं. अफ्रीकन स्पीसीज वाइट एंड ब्लैक रफली 22,500, वाइट 15,750 एंड ब्लैक 6,800. सबसे ज़्यादा राइनोज जो हैं वो अफ्रीकन स्पीसीज के हैं जो कि 22,500 हैं. अफ्रीकन स्पीसीज में वाइट एंड ब्लैक दोनों टाइप के राइनोज यहाँ पर सबसे ज़्यादा हैं. अफ्रीकन पॉपुलेशन फेस पोचिंग थ्रेट. अफ्रीकन पॉपुलेशन पोचिंग थ्रेट सबसे ज़्यादा फेस कर रही है. एशियन स्पीसीज में इंडियन, जावा, सुमात्रा, इन सभी कंट्रीज के अंदर ये राइनो मिल जाएंगे. अराउंड 3,400 एशियन स्पीसीज में 3,400 राइनोज हैं. इसमें इंडियन स्पीसीज अबाउट 4,000, जावा 50, सुमात्रन 40. राइनो पॉपुलेशन इन इंडिया. इंडिया में राइनो का कितना पॉपुलेशन है? टोटल ओवर 3,300. ग्रेटर वन ऑन राइनोज. इंडियन राइनोज के नाम से भी इसको जाना जाता है. इंडिया में राइनोज का पॉपुलेशन अबाउट 3,300 है. बट इसमें सबसे ज़्यादा वन ऑन राइनोज हैं जिसको इंडियन राइनो के नाम से भी जाना जाता है. आसाम द लार्जेस्ट नंबर विद काजीरंगा नेशनल पार्क होल्डिंग ओवर 2,600, अबाउट 70% ऑफ द वर्ल्ड्स इंडियन राइनोज. इंडिया में सबसे ज़्यादा राइनोज काजीरंगा नेशनल पार्क में है. अबाउट 2,600 राइनोज काजीरंगा नेशनल पार्क में है. इंडियन राइनोज की अगर बात की जाए तो इंडियन राइनोज का 70% राइनोज काजीरंगा नेशनल पार्क में ही है. वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ ग्रेटर वन ऑन राइनोज. सबसे ज़्यादा वन ऑन राइनोज अगर किसी पार्क में है तो काजीरंगा नेशनल पार्क में है. इट मीन्स काजीरंगा नेशनल पार्क वर्ल्ड लार्जेस्ट वन ऑन राइनोज के पॉपुलेशन के लिए जाना जाता है. अदर पार्क औरंग नेशनल पार्क, पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मनास नेशनल पार्क एंड स्मॉलर पॉपुलेशन इन वेस्ट बंगाल एंड यूपी. Indian rhino population is growing, showing increased number in India and Nepal. इंडियन राइनो का पॉपुलेशन कंटिन्यू ग्रो हो रहा है. इंडिया एंड नेपाल दोनों ही कंट्रीज में राइनोज का पॉपुलेशन कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है. की रीजन फॉर राइनो पोचिंग. राइनो पोचिंग क्यों किया जाता है? नंबर ट्रेडिशनल मेडिसिन फॉल्स बिलीफ. Rhino horn made of keratin like fingernails is ground into powder and used to treat ailments like fever, cancer and hangovers. So scientific evidence so it's medically useless. Number of status symbol and luxury goods. Wealthy buyers in China and Vietnam purchase horns as symbol of success, prestige or as expensive gift, even displaying them in business settings. They are carved into ornate items like jewelry, dagger handles, and cups. Say study. Number three, high profit and organized crime. The extreme demand makes rhino on incredibly valuable, attracting sophisticated criminal network that smuggle horns globally. Number four, economic dispersion. In areas with poverty, some locals poach for income, providing food or money for families. What are conservation efforts to protect rhinos? राइनोज को प्रोटेक्ट करने के लिए कंजर्वेशन एफर्ट्स क्या क्या टेकिंग किए गए हैं?
In India, focus on greater one-owned rhinos. Kaziranga National Park, a global success model with state patrols, smart policies, and community partnership. Indian Rhino Vision 2020, a successful program that reintroduced rhinos to Manas National Park, increasing population significantly. 2020 में इंडिया में इंडियन राइनो विजन सेट किया गया था। इस विजन के अकॉर्डिंग मानस नेशनल पार्क में राइनोज को यहाँ पर प्रोटेक्शन गिवन किया गया है, जिसकी वजह से मानस नेशनल पार्क में राइनोज का पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ। ट्रांसलोकेशंस, moving rhinos to safer, holistic habitat, historic habitat like Manas, Dodwa to create new populations. Technology, use of drones, satellite and intelligence sharing to combat poaching. वर्ल्ड वाइड कंजर्वेशन एफर्ट्स, राइनोज के प्रोटेक्शन के लिए वर्ल्ड वाइड लेवल पर क्या क्या कंजर्वेशन एफर्ट्स टेकिंग किए गए हैं। एंटी पोचिंग, हैवी इन्वेस्टमेंट इन रेंजर ट्रेनिंग इक्विपमेंट एंड एंटी पोचिंग यूनिट्स। Habitat management, securing and restoring habitat across Africa and Asia. Demand reduction, campaign targeting the illegal rhino horn trade, particularly in Asia for traditional medicine. International cooperation, joint protocol between countries such as India, Nepal, Bhutan, and Indonesia, Malaysia to protect cross-border population. क्रॉस बॉर्डर पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ कंट्रीज के द्वारा सच एज इंडिया, नेपाल, भूटान, इंडोनेशिया, मलेशिया, इन सभी कंट्रीज ने कुछ यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर जॉइंट कोऑपरेशन के लिए इनिशिएटिव टेकिंग किए हैं। कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन, इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटीज थ्रू एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड शेयर्ड बेनिफिट टू रिड्यूस ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट एंड फोस्टर स्टीवर्डशिप। रिसर्च एंड मॉनिटरिंग, यूजिंग साइंस टू ट्रैक पॉपुलेशन एंड अंडरस्टैंड थ्रेट। राइनोज की पॉपुलेशन को ट्रैक करने के लिए साइंस का यूज किया गया, साथ ही थ्रेड इनके लिए क्या क्या है उसको अंडरस्टैंड किया गया। की ऑर्गेनाइजेशंस रिलेटेड टू राइनोज, राइनोज से रिलेटेड की ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन से हैं। नंबर 1, WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, सपोर्ट ट्रांसलोकेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिटी प्रोग्राम। इंटरनेशनल राइनो फंड IRF funds on the ground program in Africa and Asia, focusing on science and anti-poaching. Save the Rhino International fund project globally, stopping illegal trade and supporting communities. In this session, we will discuss about child trafficking in India. In news. Recently, Supreme Court has issued a stern wake-up call about child trafficking in India. Recently, Supreme Court of India ने चाइल्ड ट्रैफिकिंग से रिलेटेड एक वेकअप कॉल गिवन किया है। In a December 19 judgment, it observed that child trafficking is a deeply disturbing reality in country where sexual exploitation of children increasing despite protective laws. सुप्रीम कोर्ट ने 19 दिसंबर के अपने जजमेंट में ये ऑब्जर्व किया कि कंट्री के अंदर चाइल्ड ट्रैफिकिंग एक डीपली डिस्टर्बिंग रियलिटी बन चुका है। ट्रैफिकिंग से चाइल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ होने के बाद भी इंडिया में सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन चिल्ड्रन का इंक्रीज हो रहा है। लास्ट ईयर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स told Parliament that India had recorded 10,659 cases of human trafficking between 2018 and 2022. लास्ट ईयर MHA ने पार्लियामेंट में ये इंफॉर्मेशन गिवन किया है कि 2018 टू 2022 के बिटवीन इंडिया में 10,659 केसेस ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड थे। Child trafficking in India scale. On average, 8 children are trafficked every day in India. पर डे इंडिया में 8 चिल्ड्रन ट्रैफिक्ड किए जाते हैं। NCR में डाटा फॉर 2022 रिकॉर्डेड 2,878 चाइल्ड ट्रैफिकिंग विक्टिम्स इंक्लूडिंग ओवर 1,000 गर्ल्स। NCRB के एक डाटा के अकॉर्डिंग 2,878 चाइल्ड ट्रैफिकिंग विक्टिम्स 2022 में शो हुए थे, जिनमें से 1,000 गर्ल्स थी। नेचर, approximately 95% of reported cases are of internal trafficking. 95% केसेस जो थे चाइल्ड ट्रैफिकिंग के वो इंटरनल
ट्रैफिकिंग से रिलेटेड थे। इट मीन्स विद इन द कंट्री ये ट्रैफिकिंग किए गए थे। की स्टेट्स बिहार एंड राजस्थान रिपोर्ट द हाईएस्ट नंबर ऑफ चाइल्ड ट्रैफिकिंग चार्जशीट। वेस्ट बंगाल, यूपी एंड महाराष्ट्र आर ऑल्सो मेजर हब्स। इंडिया के बिहार और राजस्थान टू ऐसे स्टेट हैं जहां पर हाईएस्ट नंबर ऑफ चाइल्ड ट्रैफिकिंग रिपोर्ट किए गए। अदर स्टेट सच एज वेस्ट बंगाल, यूपी, महाराष्ट्र ये भी चाइल्ड ट्रैफिकिंग के मेजर हब्स हैं। ट्रांसनेशनल रूट children are trafficked across borders from Nepal, Bangladesh, and Myanmar into India, or from India to Gulf states, often as domestic help known as Kadama and Southeast Asia. What are the main causes of child trafficking? Child trafficking के main causes क्या-क्या हैं? Socio-economic, chronic poverty, hunger, and lack of employment opportunity often drive families to sell children or lead children to migrate in search of work. Number of social factors: caste-based discrimination, gender inequality, and illiteracy make marginalized communities more vulnerable. Traditional practices: systems like Devdasi or Jogin historically facilitated sexual exploitation. External factors: the COVID-19 pandemic, climate-induced migration, and online sexual predation have created new vulnerabilities. Forms of exploitation of trafficked child. ट्रैफिड चाइल्ड के साथ किस टाइप के एक्सप्लॉयटेशन किए जाते हैं? फोर्स्ड लेबर, बॉन्डेड लेबर इन एग्रीकल्चर, ब्रिक किल्स एंड हजार्डस इंडस्ट्री। ट्रैफिड चाइल्ड से बॉन्डेड लेबरिंग कराया जाता है एग्रीकल्चर में, ब्रिक किल्स में या फिर हजार्डस इंडस्ट्रीज में इनसे लेबर वर्क टेकिंग किया जाता है। ऑर्गन ट्रेड, इलीगल हार्वेस्टिंग ऑफ ऑर्गन्स फॉर सेल, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, commercial sex trade, child pornography, and forced marriage, illegal activities, forced begging rackets, and involvement in armed conflict as child soldiers. Legal and institutional framework related to child trafficking. Child trafficking से related legal and institutional frameworks क्या है? A number of constitutional provisions. Article 23 prohibit human trafficking and forced labor. Article 23 के अकॉर्डिंग इंडिया में ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर को प्रोहिबिट किया गया है। आर्टिकल 39 ई एंड एफ डायरेक्ट द स्टेट टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड अबंडनमेंट। आर्टिकल 39 ई एंड एफ के अंडर स्टेट के लिए डायरेक्ट किया गया है कि वो चिल्ड्रन को एक्सप्लॉयटेशन एंड अबंडनमेंट के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करें। नंबर ऑफ मेजर लेजिस्लेशंस, चाइल्ड ट्रैफिकिंग से रिलेटेड मेजर लेजिस्लेशंस इंडिया में क्या-क्या हैं? भारतीय न्याय संहिता 2023 सेक्शन 143 and 144 provide stringent punishment including life imprisonment for trafficking children. BNS सेक्शन 143 and 144 के अंडर प्रोविजन किया गया है चाइल्ड ट्रैफिकिंग करने वाले पर्सन के अगेंस्ट स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट यहाँ पर गिवन किया जा सकते हैं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक यहाँ पर गिवन किया जा सकता है। इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट ITPA 1956, इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट द प्राइमरी लॉ फॉर कॉम्बैटिंग ट्रैफिकिंग फॉर कॉमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। कॉमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए अगर चाइल्ड का ट्रैफिकिंग किया जाता है तो इसको डील करने के लिए इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट ITPA 1956 एक प्राइमरी लॉ है। पोक्सो एक्ट 2012 प्रोवाइड अ लीगल फ्रेमवर्क टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन। चिल्ड्रन को सेक्सुअल अब्यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया में पोक्सो एक्ट 2012 है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 फोकस ऑन द केयर, प्रोटेक्शन एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ रेस्क्यूड चिल्ड्रन। रेस्क्यूड चिल्ड्रन का केयर, प्रोटेक्शन एंड रिहैबिलिटेशन के लिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के अंदर प्रोविजन किए गए हैं। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 completely ban employment of children under 14 and hazardous work for adolescents. चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 के अंडर 14 ईयर के अंडर चिल्ड्रन के लिए एम्प्लॉयमेंट को बैन किया गया है। साथ ही अडोलसेंट के लिए हजार्डर वर्क यहाँ पर बैन किया गया है।
एडोलसेंट मीन्स 14 टू 18 ईयर के चिल्ड्रन हजार्डस वर्क नहीं कर सकते। 14 ईयर्स से कम एज के चिल्ड्रन के लिए भी यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट बैन किया गया है। नंबर 3, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट AHTU, specialized unit established in district since 2007 for victim-centric law enforcement. Pencil Portal, a platform for effective enforcement of the Child Labor Act. Childline 1098, a 24-hour emergency helpline for children in distress. जो भी चिल्ड्रन डिस्ट्रेस फील कर रहे हैं किसी भी रीजन की वजह से 1098 पर वो इमरजेंसी कॉल टेकिंग कर सकते हैं। ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑफ चाइल्ड ट्रैफिकिंग। इंटरनेशनल कॉन्वेंशन। इंडिया has ratified the Palermo Protocol and सार्क कन्वेंशन ऑन ट्रैफिकिंग। ट्रैफिकिंग से रिलेटेड वर्ल्ड लेवल पर कुछ कॉन्वेंशन हुए हैं सच एज पालेर्मो प्रोटोकॉल, यूएन प्रोटोकॉल अगेंस्ट ट्रैफिकिंग एंड सार्क कन्वेंशन। इंडिया ने इन सभी कन्वेंशन को रेटिफाइड किया है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट। ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज द थर्ड मोस्ट प्रॉफिटेबल क्रिमिनल इंडस्ट्री ग्लोबली आफ्टर ड्रग्स एंड वेपन्स, जनरेटिंग अप्रोक्सीमेटली $150 बिलियन एनुअली। ड्रग्स एंड वेपन के बाद ह्यूमन ट्रैफिकिंग वर्ल्ड का थर्ड मोस्ट प्रॉफिटेबल क्रिमिनल इंडस्ट्री है, जो कि $150 बिलियन एनुअली जनरेट कर रहा है। प्रिविलेंस। द ILO estimate roughly 27 million people are in modern slavery worldwide, with children accounting for approximately 34% of cases. ILO ने एस्टिमेट किया है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर अबाउट 27 मिलियन पीपल हैं जो स्लेवरी के तौर पर वर्क कर रहे हैं। इनमें से 34% चिल्ड्रन हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।